Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Minister, Punjab National Bank. So today I posted one video and sought your views. Who will be successful? I gave you two situations, and almost everyone agreed that the candidate B will be successful. Candidate B means the person who is willing to accept the rules and prepare for the situation accordingly. So the key to success is flexibility. Anyone who is flexible to the circumstances is bound to succeed. And any person who is rigid in the thoughts may not get success. So my advice to each one of you is, as IBPS has already announced the dates are before us, and examination season is likely to start in September. If we go by those dates, we should do our work. Our work is to prepare for the exam. Some candidates are raising their problems. Some candidates are doubting the dates. Some candidates are raising some issues. Say some people are saying trains are running, how we will reach? One fake news is in circulation that the train service is suspended up to 30th September. Railways clarified there is no such news from their side. So there will be always some rumors and some news that may be true. So by the time examination happens, train services may be available, transportation may be available, who knows? So instead of speculating on these things, the better option is we should concentrate on our work. Our work is to prepare for examination. And unless we appear for the examination, we will not get the job. And IBPS is trying its level best to conduct the examination so that the people get their job. Now, if we look at other organizations like SSC Odisha, they have also announced the dates, and the dates are in September and October. The call letter for NDA examination is out. So everywhere now a signal is coming that there will be some conducive environment in the month of September to conduct the examination, and we have to accept it. So my advice to my subscriber will be, we should not waste our energies in discussion on this issue, whether exam will be held or not, whether it will be postponed, whether it will happen or not. Rather, we should concentrate on our studies, prepare well, so that we clear the examination. Competition is very tough, we have to keep in mind. I am posting daily videos how you should prepare. Follow those tips. These are bound to help you. For your help, I have suggested 3 tools. One is good quality mock test. Link is available in description and comment column. Subscribe it, you will be benefited. Second, good source of current affairs. I have provided a link of PDF. Subscribe it, use it, you will be benefited. Then very good quality videos on banking, finance and financial awareness. That is very useful. These are free of cost. Watch these videos 5 and 10. And besides that, I am posting daily videos how you should prepare for a particular exam on that day. Follow that schedule. It will help you. My blessings are with you. I want you should be successful and get the job. Don't spend time on unnecessary worries. These worries will go away. You should concentrate on study.
Don't overspend your energies on the things that is behind your control. Spend your energies on the things that is within your control. It will help you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज मैंने एक विषय पर आपके विचार जानने चाहा। उसमें मैंने दो ऑप्शन दी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सभी लोगों ने दूसरी ऑप्शन को ठीक माना कि जो लोग रूल्स के अनुसार ये जानते हैं तरीका कि कैसे मुझे सक्सेसफुल होना है, वही सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आप देखिए कि IBPS ने डेट्स दे दी हैं, हमें एग्ज़ाम पर बैठना है। कुछ लोग इसको ठीक मान रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में दुविधा है कि सर ट्रेन सर्विस नहीं है, बस सर्विस नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा, या कुछ और दुविधा है। उसके साथ साथ भी कई रूमर्स भी चल रही हैं कि 30 सितंबर तक ट्रेन सर्विस सस्पेंड हो गई। बाद में रेलवे का क्लैरिफिकेशन भी है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो तरह तरह की बातें इन दिनों में होंगी। मेरा मानना यह है कि हमें उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए जो मेरे बस में है, और जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। मेरे बस में क्या है? पढ़ाई करना। मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कंसंट्रेशन बना सकता हूँ। पर यदि मैं फजूल की चीज़ों पर दिमाग लगाता रहूँगा तो मेरा क्या होगा? मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, मेरी पढ़ाई नहीं होगी, दूसरे लोग पास हो जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊँगा। अभी काफ़ी वक्त है एग्ज़ाम में, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है आसानी से आपको ट्रेन सर्विस मिल जाए, हो सकता है आसानी से कोई और व्हीकल मिल जाए जो सस्ता मोड हो सकता है कोई आपका दोस्त मिल जाए जिसमें आपको लिफ्ट मिल जाए, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो बिल्कुल हमें ये मान लेना कि कुछ नहीं होगा, ये गलत है। अब आप देखिए क्या है, उड़ीसा SSC ने भी डेट्स निकाल दी हैं, वो भी सितंबर की हैं। NDA का एडमिट कार्ड भी आ गया है, वो भी सितंबर का है। IBPS ने जो डेट्स दी हैं वो भी सितंबर अक्टूबर की हैं। इससे क्या पता लग रहा है? इसका मतलब है कि एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, और वो इन सब एजेंसीज के टच में हैं, चाहे वो रेलवेज़ हैं, चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट्स हैं या अदर एजेंसीज हैं। तो हमें अननेसेसरी वरी छोड़ के, अब आप ये देखिए यूपी में कई हिस्सों में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी एग्ज़ाम हो गया B.Ed का। तो कई लोगों को चिंता है कि जी मेरे स्टेट में लॉकडाउन एग्ज़ाम कैसे होगा। लॉकडाउन में एग्ज़ाम को कैंडिडेट्स को वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो बेकार की चिंताएं आप छोड़ दीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पे विचार मत करिए। आपके कंट्रोल में है आपकी पढ़ाई करना। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने पढ़ने में ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम्स की डेट आई है, ये मान के चलिए कि इन डेट्स पे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये तो जब डेट आएगी तभी पता लगेगा। मान लो अभी से आप धारणा बना के बैठ गए एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम हो गया, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हमें जो ऑफिशियल डेट आ गई है उसको सही डेट मान के हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन क्या होता है, क्या परिस्थितियां होती है, ये तो आज किसी को भी नहीं पता, पर संभावना पूरी है कि जो डेटें निकाली हैं वो सोच समझ के निकाली होंगी और उस पर एग्ज़ाम होगा। अब कोई कहे जी एग्ज़ाम का बायकॉट कर दो, कोई कहे जी मैं बेट लगाता हूँ ये नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन तो मिल सकती है, पर आप पिछड़ जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। हजारों की तादाद में सिर्फ पोस्टें हैं, लाखों की तादाद में कैंडिडेट है। यदि आप इस तरह के विचारों में पड़े रहे आप ही पिछड़ जाएंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर अगले साल क्या परिस्थिति होगी किसी को पता ही नहीं है। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है उसको देखिए, उसके अनुसार तैयारी करिए। 3 अच्छे सोर्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपको इजी करेंगे इस बैटल में लड़ना। ये 3 वेपन्स हैं। एक अच्छा मॉक टेस्ट, उसका लिंक मैंने आपको दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में, इसको ले लीजिए। इससे आपको अपनी वीकनेसेस पता लगेंगी और आप उसको इम्प्रूव करिए।
दूसरा, मैंने आपको एक अच्छा PDF दिया है करंट अफेयर्स का, उसको सब्सक्राइब करके उसको पढ़ना शुरू करिए, करंट अफेयर में इम्प्रूवमेंट करिए। बैंकिंग अवेयरनेस की मैंने वीडियोस का लिंक दिया है, उसको देखना शुरू करिए, उससे बैंकिंग की नॉलेज बढ़ेगी। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखिए। साथ ही साथ जो मेरे डेली वीडियोस हैं कि RRB की कैसे तैयारी करनी है, SBI जूनियर एसोसिएट और RBI असिस्टेंट की कैसे तैयारी करनी है, IBPS PO की कैसे तैयारी करनी है, IBPS क्लर्क की कैसे तैयारी करनी है, SO के लिए भी सेम ही है जो PO के लिए तैयारी है, अदर देन जो उनका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है अलग से तैयार करना है, तो उसको देखिए और उसको फॉलो करिए। मेरा मानना यह है कि अब इस बात की डिस्कशन से आप दूर हो जाएं कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है तो एक चीज़ निश्चित है, एग्ज़ाम होंगे, और काफ़ी हद तक ये भी निश्चित है कि इन्हीं डेट्स पे होंगे। तो हमें इसको मानते हुए कि ये सही डेट्स हैं, हमें तैयारी करते रहना चाहिए। फिर जब वो डेट आएगी हमें पता लग जाएगा क्या रियल स्थिति है। अगर यहाँ से स्थिति सुधर गई तो एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, अगर स्थिति और ख़राब हो गई तो तब पता लग जाएगा। पर अभी से अगर कोई ये मान के चल रहा है एग्ज़ाम नहीं होगा और वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहता है तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो लोग इन डेट्स पे विश्वास करके चलेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये कंपटीशन का ज़माना है, एक पोस्ट के लिए हज़ारों लोग कंपटीशन लड़ रहे हैं, ये हमें सोच के चलना है। अगर आप तैयार नहीं हो और दूसरा व्यक्ति तैयार है, वो बाजी मार जाएगा। आप समझदार बनिए और बेकार के बहकावे में ना आए और अपनी पढ़ाई पे लगे रहें, वही आपके हित में है। बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार आप अपना रास्ता चुनें। गॉड ब्लेस यू ऑल।